Welcome to A Delhi Love, Ishq Mohabbat Pyar, the podcast that treats Delhiwalas to captivating conversations on living and loving all things Delhi. Delhi is not just a place, it's a state of mind, an attitude that leaves a mark on everyone who visits or calls it home. I'm Yasmin Kidwai, your host, a documentary filmmaker, former municipal councillor, and at heart, the quintessential Delhi girl. I love how Delhi is both old and new at the same time. I value its history and heritage and love exploring the new aspects of the city we share. I'm no expert, but I grew up in the gullies here, enjoyed public service here, and just like you, shared a deep passion for Delhi's enigmatic soul. Together, let's embrace the delightful contradictions that make Delhi the city it is. After all, around every corner, there must be 1,000 dastans to share in this megacity of a million conversations. As we say every time we begin an episode of A Delhi Love, our city definitely has 1,000 dastans to share. Dastans are actually long-form tales, one long narrative with several complete episodes, each returning in some form or another to the central narrative. Dastans exist in almost all cultures. Some are thousands and some hundreds of years old. They are normally performed for entertainment. They often tell ornate stories where a central character experiences the ups and downs of a life of adventure. Take for instance the most famous dastan we all know of, Alif Laila or the Arabian Nights, also called the 1001 Nights. These stories are performed from memory, requiring the storyteller to be skilled in rhyme and even music. And the storyteller must possess the extraordinary ability to create a soundscape that transports the listener into the world being described. In the 16th century, a new form of presenting dastans began to emerge in the north of India. Urdu was the language of choice, and the form quickly became popular not only in the homes of the elite but also in the marketplaces where everyday people could gather to hear these stories. This art form was called Dastan Goi or storytelling. Dastan meaning story, Goi meaning the art of telling the story. The storyteller was called a Dastan Go. These stories were full of magic, espionage, deception, war, love, and more. And the audiences were regaled in the language and idioms of their choosing. By the 1900s, however, other art forms like radio and film emerged that distracted audiences from the gentle art of Dastan Goi. Mir Bakar Ali, the last of the legendary Dastan Goes, died in 1928 in Old Delhi, and slowly the art died out. Then, in the year 2015, Delhi was once again introduced to Dastan Goi. The art form was carefully recreated from the research of the Urdu poet and author Shamsur Rahman Farooqi by Mahmood Farooqi and the Dastan Goi Collective. Repackaged for a new generation, one of the key innovations was the inclusion of women in the telling of stories. One of these women who broke the glass ceiling is Fauzia Dastan Go, the first woman Dastan Go. Fauzia grew up in the legendary Dastan Go, Mir Bakar Ali's old locality. She discovered Dastan Goi in 2006, became fascinated by it, and began to train in it. Eventually, she gave up her teaching job to pursue the art full-time. Till now, she has performed more than 100 shows in India and the Middle East. Fauzia's significant intervention in Dastan Goi has been the revival of the unique dialects of Delhi, like Delhi ke dhobiyon ki zaban, Delhi ke naiyon ki zaban, Delhi ke karkhanon ki zaban, Delhi ki begamon ki zaban. Fauzia is also committed to developing a new generation of Dastan Goes with organizations like INTAG. अगर आप ढलेंगे नहीं, अपने आप को ढालेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि कुछ खास ऑडियंस होगी जिसको अब आपको दास्तान गोई के आर्ट फॉर्म को लोगों तक पहुंचे। मेरी रिलेशनशिप दास्तान गोई से उतनी ही पुरानी है जितनी दिल्ली। तो दिल्ली में एक रंग है जहाँ पे लोग आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। दिल्ली में ऐसी जगहें हैं जहाँ जो आर्ट के लिए मखसूस हैं, जहाँ पर आप अगर आप जाएंगे शाम तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि अरे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा हो। अशरफ सूफी दहलवी साहब की किताब है, मैं हमेशा उसे पढ़ती। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, उन्होंने उसमें जो खाके लिखे वो किसी बड़े शायरों के खाके, मल्लन नाई के खाक, मिर्जा चपाती का, घूमी कबाबी का खाक। तो ये आम लोग हैं। ये उन्होंने एक बड़ा अच्छी लाइन इस्तेमाल की, मुझे बड़ी पसंद है, दीवानी औरतें और पगले।
ये मैंने देखा है, जब भी कोई नई चीज आती है, जब हम उसको अडेप्ट करते हैं तो हमें वो कुर्बानी देनी होती है किसी पुरानी चीज, उसको हटा के या उसको कम करके वो अपनी जगह बनाती है। सो वेलकम फौजिया। हम लोग बहुत टाइम से ये करने की कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था दोनों का टाइम मैच। तो कहानी सुनना और सुनाना तो ये मतलब सदियों का शौक है, बट दास्तान गोई की शुरुआत कहाँ से हुई? पर्शिया से हुई कि अरबिक और इंडियन स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स ने इसको इन्फ्लुएंस हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई पर्शिया से, और वहां पे ये दास्तानें सुनाई जाती थी। फिर वहां से ये दास्तानें हिंदुस्तान जब आई तो इन्होंने अपना रंग बदला। हाँ, और यहाँ पे दास्तान गोई शुरू हुई, जिसमें हमें इस तरह की काफी मिसालें मिलती हैं कि अकबर के कोर्ट में दास्तान गो हुआ करते थे, और जैसे भाई म्यूजिशियंस होते थे वैसे दास्तान गो भी होते थे। तो वहां से ये दास्तानें यहाँ आई, और दिल्ली में और लखनऊ में ये बहुत परवान चढ़ी। और लखनऊ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहां पर आपने सुना होगा मुंशी नवल किशोर एक प्रेस हुआ करता था। उन्होंने क्या किया कि असल में ये ना ओरल ट्रेडिशन था, है ना। तो ये जो ये मतलब जैसे आप कहते हैं कि जब ये ट्रांसफर हुई तो ये ओरल ट्रेडिशन के जरिए ट्रांसफर हुई, ऐसा नहीं था कि किताबें लिखी हुई थी। तो मुंशी नवल किशोर ने क्या किया कि तमाम दास्तान को बिठाया और ये दास्तानें कलमबंद करानी शुरू करी, यानी लिखवानी शुरू करी। ये किस साल की बात हम कर रहे हैं? ये एग्जैक्टली तो मुझे इस तरह याद नहीं है, कौन सा किस मतलब 19th सेंचुरी। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, तब ये शुरुआत हुई, ठीक है। और वहां पे उन दास्तान गोइयों को इकट्ठा किया गया और उनको दास्तानी लिखा। तो तिलिस्म होशरुबा, तिलिस्म यानी जादू, और होशरुबा यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे। तो वो एक वॉल्यूम में होती थी, लेकिन इन दास्तान गोइयों का ये बूता देखिए, उन्होंने उसको इतना फैलाया कि वो 46 वॉल्यूम्स में पहुंच गई, और हर वॉल्यूम में 1000 पेजेस, और यानी कि 46,000 पेजेस। तो मीर बाकर अली जो आखिरी दास्तान गो थे, जो कि पुरानी दिल्ली से थे, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वो दास्तान सुनाते थे, तो उनसे एक बार पूछा गया कि भाई आपने कभी ये तमाम जिंदगी में इसको खत्म किया है? तो कहने लगे हाँ, एक बार। अच्छा, हाँ। और आप देखिए कि ये दास्तानें जो हैं ये भाई आजकल तो ये रील्स का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है ना। हम छोटी छोटी 30 सेकंड 20 सेकंड, ये उस जमाने की बात है जब लोगों को याद होता कि कहानी कहाँ, मतलब कहाँ पे अभी ये ट्विस्ट आने वाला है, और वो कहते अब हम आपको अगली जुमेरात को सुनाएंगे। अच्छा, एक बार में खत्म नहीं होती थी? ना 46। तो वो ये तो जैसे अलिफ लैला, कहानियों पे कहानियां, कहानियों पे कहानियां, अरेबियन नाइट्स, ये उसी तरह का सिलसिला था। तो इसमें दास्तानें ये शुरू होती थी, और वो कहते भाई अब हम अगली जुमेरात को सुनाएंगे, अब अगली बार क्या होगा, अगली जुमेरात को आइए। तो अगली जुमेरात को लोग आते थे, और वो मेरे ख्याल से इसलिए आते थे भाई टीवी नहीं होता था घरों में, अखबार नहीं था, सुनने की एक ताकत थी। आजकल तो हम स्क्रॉल करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हम स्क्रॉल क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, और हमारी उंगली बस चल रही होती है ऐसे, और हम अटकते भी नहीं। इवन मैं तो कहती हूँ 30 सेकंड पे भी नहीं अटकते कभी कभी। लेकिन ये सुनने वालों का बूता था, ये उस जमाने की बात है। और आखिरी दास्तान को 1928 में ऐसा लोग कहते हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी पुरानी दिल्ली में दास्तान गो रहे, और लोगों ने उन्हें सुना, लोग सुनते थे। भाई ठीक है, वो उस तरह से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नहीं होती थी, लेकिन फिर घरों में, मोहल्ले में होने लगी, लोग वहां पे बैठ के सुनने लगे। तो ये दास्तान गोई की शुरुआत थी। अच्छा, एंड ये जैसे आप कह रही थी कि अकबर के कोर्ट में, तो मुगलों के टाइम पे काफी पॉपुलर थी, बहुत पॉपुलर थी। 16th सेंचुरी में अकबर ने हमजा नामा एक मिनिएचर बनाया पूरा, जो कि दास्तानों पे बेस्ड था। अब जैसे हम मतलब मेरे दानिश हुसैन, मेरे उस्ताद हैं, वो बड़ा एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं भाई जैसे पीपीटी का पहला वर्जन जो है वो था भाई, वो दास्तान सुना रहे हैं, है ना। हम आजकल पावर पॉइंट बनाते हैं ना, तो वो दास्तानें पीछे, वो जो हमजा नामे की जो पिक्चर्स थी वो पीछे चला करती थी। तो हाँ, तो वो हंस के कहते हैं कि भाई वो पहला पीपीटी था उस जमाने का, जब पावर पॉइंट पे आप इस तरह की। तो उन्होंने उसे कमीशन किया, और वो हमजा नामा की वो पेंटिंग्स बनाई, वो मिनिएचर्स हैं, हमें काफी देखने को मिल जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं देखने को। और उस टाइम आई थिंक दोनों उनके कोर्ट में भी और बाजारों और सब जगह ये एक पॉपुलर, सब जगह। हाँ भाई, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हुआ करता था, वैसे ही दास्तान गोई हुआ करती थी, और उतना ही रिस्पेक्ट था, बिल्कुल उतना ही इज्जत थी, रिस्पेक्ट था।
और भाई कोर्ट में थे अकबर के। नहीं, मैं ये कह रही थी कि कोर्ट में भी थे और आप बाजारों में भी थे। हाँ, इस आर्ट का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी बात ये कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है लोग जबान कितनी जानते थे उस वक्त, जबान की पकड़ कितनी थी। अगर आप तिलिस्म में होशरुबा की जबान देखें, वो काफी मुश्किल जबान है, मतलब तो उस जमाने में वो जबान की पकड़ पे मुझे मतलब क्योंकि अच्छी खासी खालिस उर्दू है वो। एंड जैसे दुनिया भर में जो ये दास्तानें हैं, ओडिसी ग्रीस में, रुस्तम सौराब पर्शियन में, ऑफ कोर्स अलिफ लैला की हम बात कर रहे थे, ये सारी कहानियां हैं एडवेंचर की, और इसमें एडवेंचर में बहुत फोकस रहता है। दास्तान गोई भी के सारी जो दास्तान होती हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो एडवेंचर की स्टोरीज पे होती हैं। देखिए आप आप अगर पुरानी दास्तानों के बारे में पूछे तो हाँ, उसमें एक ये एलिमेंट होना जरूरी है। जैसे दास्तान में ये एलिमेंट होना जरूरी है। मैं कहीं पढ़ती रज़्म, बज़्म, तिलिस्म और इश्क, अय्यारी। अय्यारी करेक्ट बोला मैंने? करेक्ट बोला। हाँ, तो ये 4 एलिमेंट हुआ करते थे, और जो कि दास्तान को एक बेसिक के भाई इसके इर्द गिर्द जो है ये दास्तान, मतलब ये वाले एलिमेंट तो होने चाहिए दास्तान में। मतलब रज़्म का मतलब वॉरफेयर, करेक्ट। बज़्म मतलब एक इश्क, तिलिस्म जादू, अय्यारी म्यूजिक। नहीं, अय्यारी ट्रिक्स होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अमर अय्यार पर है। अमर अय्यार जो है वो जंग नहीं करता, लेकिन अपने दिमाग से वो ऐसी आपकी चालें चलेगा कि आपके होश उड़ा देगा। हाँ, ये अमर अय्यार से है अय्यारी। तो अय्यार हुआ करते थे असल में। जैसे अमर अय्यार तो सबसे उस्ताद अय्यार थे। उनके ये वही के थे, अरब के। अच्छा। हाँ। क्योंकि दास्तानी तिलिस्म में होशरुबा जो है पूरा वो अरब पे बेस्ड है। तो अभी इसमें दास्तान गोई में एक और इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है, परहैप्स यही वजह था कि ये इतनी आराम से पॉपुलर हो गई कि इसमें परफॉर्मर्स आपके बहुत कम है एक दास्तान गोई में, करेक्ट? आपका सेट, आप कंटेम्प्रेरी की बात करेंगे? नहीं, मैं पुराने की पुराने में ज्यादा होते थे क्या? नहीं, पुराने में बल्कि एक अकेले सुनाता था दास्तान। एक अकेले सुनाता था। अब तो कम से कम अब 2 हैं, 2 या 3 लोग। अब लोगों ने और एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, 3 भी हैं। अच्छा, पहले एक अकेले, एक छोटे से अपना उसका सेट और प्रॉप्स भी कोई ज्यादा नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। नहीं। पहले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते ही नहीं होते थे। अच्छा, जैसे उसकी सिर्फ कहानी कहने का अंदाज से उसने लोगों को रुझाना है, और उनकी आवाज का उतार चढ़ाव। आज हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लास करने जा रहे हैं हम। उन्होंने तो कोई क्लास नहीं ली थी भाई। हाँ, वो जो नेचुरल जो उनका था कि अब वो अय्यार भी दिख रहे हैं आपको, वो जब औरत बन रहे हैं तो वो औरत भी दिख रहे हैं आपको, जब वो अफरासियाब विलन बन रहे हैं तो वो विलन भी दिख रहे हैं आपको। तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज का जो जादू था वो उससे था सब कुछ। तो एक इंसान, दिस इज वन मैन शो होता था। अब कैसे नहीं, मैं क्या कह रही थी कि जब ये फॉर्म डिक्लाइन क्यों होने लगा, मतलब जब इतना पॉपुलर था और इतना आसान था, में फिल्म और टीवी क्या आना, टीवी पारसी थिएटर आ गया था, लोग उसकी तरफ रागिब होने लगे थे। अगर हम आप अगर जैसे मैं इसको एनालिसिस करती हूँ, जब भी हमने फॉर्म्स का डिक्लाइन देखा है आप, तो मीडिया का और डिजिटल का उसका बहुत ही रोल रहा है हर जगह, हर बार जब भी कोई फॉर्म डिक्लाइन हुई है। चाहे मैं क्लासिकल म्यूजिशियन की काफी ऐसी विधाएं हैं जो अब मैं देख रही हूँ कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, मैं नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन वो जा रही है डिक्लाइन की तरफ। क्यों? क्योंकि जब तक आपके वो सुनने वाले नहीं रहेंगे, देखिए हम किससे हैं, अगर हमारी ऑडियंस नहीं है, ठीक है, हम अपनी ऑडियंस से हैं। अगर हमारी ऑडियंस नहीं है, हमारे सुनने वाले नहीं है, तो हम किसे सुनाएंगे? अब रुझान जो है आपका थिएटर की तरफ हो गया, रेडियो की तरफ हो गया, टीवी की तरफ हो गया, वो ऐसा ऐसा आप उस तरफ चले गए। तो अल्टीमेटली लोगों को भाई कोई भी नई चीज जब आती है तो वो अच्छी बहुत लगती है ना। आज हम रील्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब भी कोई नई चीज आती है तो हमें वो अच्छी बहुत लगती है। वो बाद में आप उसे क्रिटिसाइज करें और वो किसी ना किसी चीज का डिक्लाइन होने का कारण जरूर बनती है। ये मैंने देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट दास्तान गोई। ये मैंने देखा है, जब भी कोई नई चीज आती है, जब हम उसको अडेप्ट करते हैं तो हमें वो कुर्बानी देनी होती है किसी पुरानी चीज की, उसको हटा के या उसको कम करके वो अपनी जगह बनाती है। तो पॉपुलर डिक्लाइन का तो मैं समझती हूँ कि यही एक वजह रही। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एलिमेंट्स जो दास्तान गोई में थे,
फिल्म्स में भी एक्चुअली वही सब लेना पड़ा ना, चाहे एडवेंचर की बात करिए, लव की बात करिए, जो हम एक मैजिक की बात करते हैं, राजा रानी, प्यार मोहब्बत, विलन्स, ये सब फिल्म में लेना ही पड़ा। जंग। हाँ। अब मॉडर्न दास्तान को ही कैसे अडॉप्ट कर रही है अपने आप को? भाई जब मैंने अपना काम शुरू किया, मैं यहाँ अपने काम की बात करूंगी, जब मॉडर्न दास्तान को मैंने काम शुरू किया तो तिलिस्म होशरुबा से शुरू किया। हमने तिलिस्म होशरुबा सुनाई, लेकिन अच्छा, आपने पहले उसी से शुरू किया। हाँ, पहले उसी से शुरू किया। फिर अब ये चैलेंज है कि आपको ना, अगर आप ढलेंगे नहीं, अपने आप को ढालेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि कुछ खास ऑडियंस होगी जिसको अब आपको दास्तान गोई के आर्ट फॉर्म को लोगों तक पहुंचाना है। तो मैंने जो खास तौर से जो चीजें चुनी हैं अभी तक, मैंने ऐसा नहीं मैंने हर चीज पे दास्तान गोई शुरू कर दी, मेरा ऐसा नहीं है। काफी बार लोग मुझे अप्रोच करते हैं फौजा इस पे दास्तान गोई करानी है, तो मैं माफी मांग लेती हूँ कि देखिए ये आप इस पे कहानी सुनवा दीजिए, मगर दास्तान गोई नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वो एलिमेंट नहीं आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने महाभारत को चुना, मैंने राम को चुना, मैंने राधा कृष्ण को चुना, मैंने गांधी को चुना, और तो ये जो चीजें, अब मैंने अनारकली पे मैं दास्तान लेकर आ रही हूँ, सुमन बत्रा साहब की किताब है, उस पे हम दास्तान गोई करने जा रहे हैं। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के चुना, और इसमें सारे एलिमेंट हैं जो आपने अभी बात करी है, उसको हम कोशिश करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंसेस से भी और उभारें, अपनी जो हमारी स्क्रिप्ट है उससे और उभारें। बट इनको जैसे नए टॉपिक्स को लेना दास्तान गोई में, इससे इसकी एक रेलेवेंस भी तो बनी रहती है। रेलेवेंस भी बनी रहती है। देखिए जैसे महाभारत, लोगों को पता ही नहीं था कि महाभारत जो है, भाई महाभारत अगर हम उर्दू में कर रहे हैं कोई नई चीज नहीं है, ये सालों पहले उर्दू में लिखा हुआ कंटेंट है ऑलरेडी, जिसको हमने कंपाइल एंड डिजाइन करके हम आपको सुना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ा तीर मार लिया और हमने दास्तान लिख दी उर्दू में, भाई ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं था। ये हमारे काम के बाद पता चली। जब मैं अयोध्या गई थी अभी, मैं दास्तान राम वहां करके आई। अच्छा जी। और मैं प्योर उर्दू में करके आई हूँ। और क्या रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और लोगों ने सुना, और लोगों ने, देखिए कहानी लोगों को पता है, ठीक है, तो हमारा मकसद ये नहीं कि आपको लफ्ज ब लफ्ज आप उसको समझें, लेकिन आप उसका फील समझ। और ये पहली बार है कि राम हमने पोएट्री फॉर्म में सुनाई है। अच्छा। मंजूम दास्तान है वो। अच्छा जी, वो शायरी की जबान में। कितनी लंबी है? वो है 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा है। रेड एफएम का पॉडकास्ट है, उस पर है। अच्छा, दास्तान राम है, मौजूद है जी। तो वो अब हम ये कहते हैं कि रेलेवेंस उसका है, और राम को हम उर्दू में कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। जैसे जब मुझे याद है, मैं एक फेस्टिवल में थी जयपुर में, तो एक साहिबा आई मेरे पास और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के कहा, तो वो कह लेंगी, बेटा जिस तरह प्रभु राम के दर्शन आपने कराए हैं आज तक किसी ने नहीं कराए। और ये मेरे लिए, मतलब मुझे लगा कि भाई जो मेरा मकसद था वो हो गया। मतलब अगर हम उन तक पहुंच पाए, उनको और वो आंखों में आंसू थे उनके, वो रो रही थी, उनको इतनी पसंद आई वो दास्तान। क्योंकि भाई उन्होंने राम कथा सुनी है, रामलीला भी देखी है बहुत बार, लेकिन इस तरह 2 लोग बैठ के राम सुना रहे हैं, वो उन्होंने नहीं सुना था। और उर्दू में, और अजी वो तो खालिस उर्दू में। अच्छा। मतलब वो तो काफी मुश्किल उर्दू है, ठीक ठाक मुश्किल उर्दू है, और लोगों को मजा आता है, लोग सुनते हैं और लोग ताली बजाते हैं। मुझे याद है, मैं भोपाल में परफॉर्म कर रही थी, और वहां पर एक लाइन आती है, जय हो लक्ष्मण की, जय हो महाराज राम की। तो जैसे ही मैंने ये कहा, जय हो लक्ष्मण की, जय हो महाराज राम की, पूरा ऑडिटोरियम लाइक जय हो लक्ष्मण की और जय हो महाराज राम की। मतलब वो इतने इनटू दास्तान थे। और फिर मैं 5 सेकंड के लिए रुकी, क्योंकि देवर लाइक के भाई वाह तालियां और ये। तो उसमें जो हमने जंग का जो मंजर दिखाया है, या हमने ब्रजनारायण चकबस ने लिखा है, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो जब राम जी जा रहे हैं, अपनी माँ से विदा ले रहे हैं, और भाई ब्रजनारायण चकबस ने तो उस जमाने में लिखा ना, लेकिन हम जब उसको आवाम के सामने लाते, भाई देखिए उर्दू की ऑडियंस जानती है, मैं ये नहीं कह रही कि उर्दू की ऑडियंस नहीं जानती है, लेकिन जो ऐसी आम जनता है जिनको नहीं पता जी ब्रजनारायण चकबस ने ये लिखा है, वो कहते हैं वाह बेटा क्या सुना दिया। तो ये चीजें हैं, और ये टॉपिक हैं जो हम, मतलब मैं काफी ध्यान से चूज कर रही हूँ टॉपिक। आप कहते कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हैं कि कुछ एलिमेंट्स रहे, वो क्या एलिमेंट्स जिसकी बेसिस पे रस्म बज़्म इश्क यारी ये होने चाहिए। तो मतलब एक
उसे कहते हैं फ्लेवर होना चाहिए कंटेंट में। या तो हम स्क्रिप्ट से लाएं वो फ्लेवर, या आपकी कहानी में वो फ्लेवर है। अब अगर कहानी में वो फ्लेवर नहीं, हम स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा नहीं ला सकते उस फ्लेवर को। तो अब देखिए दास्तान गोई इवॉल्व हुई है टाइम के साथ। अगर हमने उसको कंटेम्प्रेरी बनाया है, तब लोगों को आइडियाज आते हैं कि यार मेरी किताब आ रही है, आप इस पे दास्तान गोई करिए। अब ये नया ट्रेंड है। जब कोविड आया यास्मीन जी, तो लाइव शो खत्म हो गए। अब इसे ये जो आप कंटेम्प्रेरी की बात कर रही है ना, ये है अडेप्टेबिलिटी। तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए भाई, अब तो लाइव शो खत्म हो गए। तो उसी जमाने में मुझे याद है मैं रेड एफएम के ऑफिस जाती थी, और 2 मास्क लगा के, और वहां पर हमने दास्तानी बॉलीवुड करके एक पॉडकास्ट लॉन्च किया। फिर दास्तानी मधुबाला उसी में है, ठीक है। फिर दास्तानी राम दिवाली पे लॉन्च किया। तो ये अडेप्टेबिलिटी है। अब आप लोग कहेंगे अरे भाई ये तो लाइव ऑडियंस है, आप कैसे इसको, ये अडेप्टेबिलिटी है। अगर लाइव शो नहीं हो रहे, दास्तान गोई मर नहीं सकती। अब देखिए, अब एक जिम्मेदारी ये भी है कि अब ये अगर इतनी वापस से जिंदा हुई है, तो अब ये मर नहीं सकती। अब ये मरे ना, तो या तो आप वही कहें कि नहीं जी ये तो लाइव शो है, ये तो हम नहीं कर सकते। अब भाई लाइव शो हो नहीं रहे, कोविड आ गया है, लोग नहीं आ सकते, तो क्या दास्तान गोई बंद कर दें? नहीं, उसके हमें जरिए ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे इसको हम, और बल्कि वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंची है इसके। हाँ, जब मैंने क्विंट के साथ किया था डिजिटल दास्तान गोई, अच्छा, हाँ, उसमें निर्भया पे मेरा एक वीडियो था, निर्भया पे एक वीडियो आया, फिर सेफ मदरहुड पे मैंने किया। तो मैंने काफी ऐसी चीजें भी की हैं जहां पर मैं सोशल कॉज पे काम कर रही हूँ दास्तान गोई को लेकर। और वो फिर मैंने कहा डिजिटल दास्तान गोई उसको, क्योंकि वो छोटी दास्तान गोई है, वो 1 घंटे का फॉर्मेट नहीं है, वो 8 मिनट का वीडियो है, कोई 5 मिनट का वीडियो है, जहां पर हम चाहते हैं कि, लेकिन वो है दास्तान गोई फॉर्मेट में। उसमें हमने कोई प्रॉप्स नहीं इस्तेमाल किए, है ना, और वो एक ही बंदा है जो परफॉर्म कर। सेफ मदरहुड पे किया मैंने, फिर मैंने एक एनजीओ के साथ मिलके मैंने रेप पे किया। उन सब चीजों पे मैंने काम किया है काफी। दास्तान गोई जैसे आप कह रहे हैं कि अब मर नहीं सकती, इसका जो रेजरेक्शन हुआ है, जो दोबारा ये जिंदा हुई है, 20 साल में ही सिर्फ, ये बहुत, मेरे ख्याल में 20 साल का अभी तो आई है, ये 2004-5 से जी। तो मतलब 20 साल भी नहीं हुआ, और इतनी मतलब पॉपुलर हो गई कि जो सेम प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कवाली के शोज हो रहे हैं, वहां पर दास्तान गोई बुलाया जा रहा है। इतनी पॉपुलर इतनी जल्दी कैसे हो गई? अडेप्टेबिलिटी की वजह से भी, अडेप्टेबिलिटी और कंटेम्प्रेरी इश्यूज की वजह से। अगर हम सिर्फ तिलिस्मी होशरुबा सुना रहे होते तो नहीं। अब जैसे मैं डीएलएफ क्लब में शो करके आई हूँ दास्तानी मीना कुमारी का, हाँ, वो म्यूजिकल है, वहां पे पूरा बैंड बैठता है, मतलब मैं कहानी सुनाती हूँ मीना कुमारी की, और बैंड जो है बीच बीच में गाना गाता है। ये इसकी रीच बढ़ाने का तो तरीका है कि मैंने कव्वाली के साथ खुसरो किया। कव्वाल बैठते हैं और मैं दास्तान खुसरो सुना रही। जब ए आर रहमान का कॉन्सर्ट हुआ था 2018 में, मैंने उसको ओपन किया था दास्तान खुसरो से। तो ये अडेप्टेबिलिटी ही है सिर्फ। जो वैसे प्योरिस्ट नाराज नहीं होते कि दास्तान गोई में कोई ऐसे प्योरिस्ट का रोल नहीं है? प्योरिस्ट, ये मुझे बताइए वो है कौन? वो ऑथेंटिसिटी, वो डिग्री लेकर आए हैं कहीं से? मतलब मेरा सीधा सवाल है उनसे कि उन्होंने कोई डिग्री ली है? आप कैसे अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो प्योरिस्ट हैं? भाई दास्तान तो एक आदमी करता था, आप तो 2 कर रहे हैं। मतलब जो आप करें वो सही, जो कोई और करे वो गलत। तो प्योरिस्ट तो मैं मानती नहीं हूँ। देखिए, बस मैं कहती हूँ हाँ, इसको खिलवाड़ ना करें। जैसे काफी बार मुझे लगता है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं हमेशा, भाई दास्तान गोई की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे, अगर उसमें शाइस्तगी नहीं है, उसमें वो रंग नहीं है, उसमें वो मजा नहीं है, आप कुछ भी फ्लैट बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं दास्तान गोई है, मुझे उससे एतराज है। ठीक है, आप नहीं सुना। दास्तान गोई में एक रंग होना चाहिए, एक फ्लेवर होना चाहिए, एक मजा होना चाहिए। अगर वो चीज मिसिंग है तो नहीं है। तो प्योरिस्ट का तो ये है भाई कि कोई भी कहीं से डिग्री, मैं भी कहीं से डिग्री लेकर नहीं आई ना कि भाई ये मास्टर्स हैं फौजा दास्तान गोई में, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई है, दास्तान गोई में डिग्री लेकर आई है। नहीं, हम सब ने जो पढ़ा है, जो हम तक पहुंचा है, हम उससे ट्रायल एरर करके सीख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कोई वीडियोस नहीं है यास्मीन जी जो हम देखें पुराने के, जी पुराने क्या होता था, या ये कॉस्ट्यूम था। हाँ, अब जब मैंने दास्तान गोई शुरू करी फीमेल, अब फीमेल पहले तो होती नहीं थी। हाँ, औरतें तो करती ही नहीं, क्योंकि जामा मस्जिद सीढ़ियों पर जराना में कौन औरत आके दास्तान गोई करी। तो अब सबसे बड़ा मसला मेरे साथ ये था कि भाई आप कॉस्ट्यूम क्या पहनेंगे। तो मैंने महेश्वर दयाल शर्मा की किताब है, उसमें वो साहब बचकन पहन के बैठे हुए हैं बहुत। तो मैंने कहा भाई ट्रेडिशनल आउटफिट तो पहनते हैं। वहीं पर है वो पूरा, वहां पर सेट है, वहां पे उनका
पानी का ग्लास है, सुराही है, वो सब रखा हुआ है। तो ट्रेडिशनल आउटफिट बेसिकली क्या होते हैं हमारे घरों में, आप भी दिल्ली से, आपका भी दिल्ली से ताल्लुक है भाई। अमूमन औरतें जो पुरानी हमारी नानी दादी, अगर आपको याद हो, गरारे, नॉर्मल गरारे पहनती थी भाई। वो नॉर्मल गरारे पहन के चूल्हे पे रोटियां पकाई हैं उन्होंने। बिल्कुल। है ना। तो अब हमें लगता है आज हम गरारा अगर पहनते थे फॉर्मल आउटफिट, है ना, या इवन लहंगे पहनती थी, वो कॉटन के लहंगे। मेरी दादी भी गरारा पहन के रोटी बनाती थी ना, रिमेम्बर इट। तो इतना नॉर्मल था ये घरों में। तो मैंने सोचा भाई गरारा पहना जाएगा और कॉटन का पहना जाएगा। बिल्कुल, कॉटन के ही होते थे। हाँ, और कॉटन का पहना जाएगा और चिकन का पहना जाएगा। तो वो वहां से वो चीज आई, ये अडेप्टेबिलिटी है। तो ये सब हम जो देख के हम सीख रहे हैं, वही चीज है। इसको लोगों तक, और मतलब अब ये आपको लगता है एज एन आर्ट फॉर्म ये इसका भी यही होगा कि कल्चरल सेंटर्स, फेस्टिवल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बन के रह जाएगी, कि जैसे पहले जमाने में जब भी अपने पीक पे थी कि लार्जर ऑडियंसेस में जा सकती है, और कैसे जा सकती है? आप लार्जर ऑडियंस किसे कहती हैं? मैं लार्जर ऑडियंस कहूंगी, जो एक किसी प्लेटफॉर्म से निकल के, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अच्छा भाई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे होता था, जिसको एक्सेसिबिलिटी जिसमें हो, कि कोई भी सुन सकता है। एक एक किसी पर्टिकुलर क्लब में जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑडियंस भी जरूरी है। वो जरूरी, डिफरेंट ऑडियंस होता है। असल में माहौल इतना बदल गया है कि अगर हम मतलब जामा मस्जिद की सीढ़ियों में बैठ के तो कर नहीं सकते भाई। करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन अब जगहें बनाई जा रही हैं, है ना, यहाँ पे हम फ्री शोज करते हैं, और भाई यहाँ पे शो हो रहा है, आप आइए देखिए। और जैसे आई थिंक यू वर सेइंग अबाउट द रेडियो आल्सो, कि उसमें आपने करा तो आपका ऑडियंस, बल्कि रेडियो ज्यादा चैलेंजिंग है। वहां ऑडियंस मुझे देख नहीं रही है। अगर मैं दास्तान गोई लाइव परफॉर्म कर रही हूँ, है ना, तो ऑडियंस मुझे देख रही है ना, मेरे एक्सप्रेशन देख रही है, मेरी आंख देख रही है, गुस्सा देख रही है, लेकिन मैं तो रेडियो पे दिख ही नहीं रही हूँ। वो चैलेंजिंग है मेरे लिए कि अब मुझे के लिए भी और वो जो मेरा खेल है ना सारा, अब वो मेरी आवाज से है। तब मुझे डबल मेहनत करनी है कि मेरी आवाज से आपको वो, जैसे लोग कहते हैं दास्तान को, अरे भाई हमारे फौजी, हमें तो पूरी फिल्म सामने नजर आ रही थी, बड़ी अच्छी बात है। तो वो तो इसलिए नजर आ रही थी कि मैं भी थी वहां पर, मेरे एक्सप्रेशन भी थे, मेरे बॉडी लैंग्वेज भी थी। अगर मैं ऐसे भी थी कभी, रेडियो पे तो नहीं हूं मैं, तो वो मुझे आवाज। आप जो कह रहे हो कि ऑडियंस आपको लाइव दे सकता है, इसमें जैसे थिएटर है, हाँ, थिएटर में जब हम देखने जाते हैं तो आप एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बट जो आपके साथ जो परफॉर्म कर रहा है वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, इट्स लाइक जैसे एक पर्दा है, ना भी होते हुए एक पर्दा है ऑडियंस और परफॉर्मर के, बट दास्तान गोई में जो परफॉर्मर है वो उसकी और ऑडियंस के बीच में पर्दा नहीं होता। नहीं, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हैं, वो वाह कर रहे हैं। हाँ, और मैं हंस के हमेशा कहती हूँ, देखिए आप सही जगह पे वाह कीजिएगा। अच्छा, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ। हाँ। जैसे काफी बार एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं ब्रजनारायण चकबस्त सुना रही थी और मैंने वो खत्म किया, तो उन्होंने कहा दोबारा, एक साहब दोबारा सुनाइए प्लीज, दोबारा इसको। मैंने कहा, फिर मैंने कहा दास्तान में से, मैंने कहा देखिए ये मुशायरा नहीं है, कहते तो ऑडियंस ने कहा नहीं दोबारा सुनाइए ब्रजनारायण चकबस्त। तो मैंने दोबारा सुनाई वहां पे। अच्छा, हालांकि मैंने कहा ये मुशायरा नहीं है, लेकिन अब अगर ऑडियंस चाह रही है कि उसको दोबारा सुनाया जाए तो दोबारा सुनाया। मतलब ये जो कनेक्टिविटी बन जाती है ऑडियंस से, इससे एक मतलब ऑलमोस्ट ऐसे एक रिश्ता बन रहा है ऑडियंस से, उससे आप यकीन मानिए ऑन योर स्टोरी देन, आप जिस तरह आप सुना रहे हो। मेरे ख्याल से मैंने सबसे कम शोज किए हैं जूम पर। जब कोविड आया मुझे घबराहट हो गई थी, सारे कैमरेज बंद है, वो और कैमरे खोले तो हम डिस्टर्ब, है ना, क्योंकि कोई पानी पी रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वो दिख रहा है, कोई कुछ नहीं, तो मोबाइल में कुछ कर रहा है, कोई इसको इशारे से बुला रहा है। तो हम कहते थे भाई आप कैमरे ऑफ कर दीजिए और माइक ऑफ कर दीजिए। अब सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन देख के मैं जो परफॉर्म कर रही हूँ, भाई मैं तो घबरा गई, भाई ये नहीं हो पाएगा, ये बड़ी अजीब चीज है। हालांकि इससे रीच बढ़ी, इससे अब यूएस में भी हम कर पाए, यूके में कर पाए, ऐसी बात नहीं है, इंटरनेशनली हमारी काफी रीच बढ़ी, लेकिन मजा नहीं आया, बकवास था। मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब वो वाली बात है। दास्तान गोई उर्दू में ही होता है कि और लैंग्वेजेस में भी होता है? अब भाई एक गुजराती में किसी ने शुरू की है, अभी शुरू किया, बट शुरू मतलब पहले किसी और लैंग्वेज में नहीं, पहले तो बल्कि फारसी में थी। हाँ, तो उससे फिर उर्दू में आई। आपका खुद का रिलेशनशिप दास्तान गोई से क्या, कहाँ शुरुआत हुई? मेरी रिलेशनशिप दास्तान गोई से
उतनी ही पुरानी है जितनी दिल्ली। देखिए मैंने ऑफिशियली दानिश हुसैन के साथ जब काम करना शुरू किया वो एक अलग बात है। दानिश हुसैन जो अब एक्टर हैं, जो एक्टर हैं, जी मैंने तो अब ये काफी बार ना हमारा एक सफर शुरू हो जाता है यास्मीन जी, और हमें पता नहीं चलता कि जिंदगी हमें उस तरफ ढाल रही है ना। जैसे हमारी अम्मा जो है, हमारी नानी हमें हमेशा बहुत किस्से सुनाती थी, बेसिकली कहानियां नहीं, किस्से सुनाती थी। इवन इस्लामिक किस्से भी सुनाती थी और प्रोफेट मोहम्मद के किस्से सुनाती थी। तो किस्से सुनाकर जो एक तरबियत होती है ना वो करती थी। और मैं वही किस्से, ऐसा नहीं कि हमेशा इस्लामी होते थे, बड़ी बड़ी कहानियां होती थी और वो हम जाके स्कूल में सुनाते थे। तो सब कहते थे फौजे सुनाओ। और मोस्टली जब एक आलमपना आया था, आपको याद है एक ड्रामा आया था आलमपना, उसका नॉवेल आया था, है ना। तो जब वो आलमपना आया टीवी पर तो मैं उस वक्त स्कूल में थी और मुझे याद है तो मुझसे ना सारी मेरी क्लास ब्रेक में इकट्ठी होती थी और आलमपना मुझसे वो सुनते थे, हाँ, कि तुम सुनाओ, ड्रामाटाइज करके तुम सुनाती हो, बड़ा मजा आता है। तब तक मुझे पता नहीं था कि क्या सिलसिला शुरू होने वाला है। फिर जब मैं कॉलेज आई तुलसी पटेल ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगी वो टेढ़ी लकीर हालांकि अवेलेबल था हिंदी में, उन्होंने कहा फौजिया मुझे तुमसे ना टेढ़ी लकीर सुननी है। भाई वो मुझे मेरे पीरियड के बाद मुझे 1 घंटे रोकती थी, कहती जब क्लास खत्म हो जाना तो आ जाना मेरे पास। और तो आपका कोई थिएटर में फॉर्मल ट्रेनिंग? बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं है मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये वो ट्रेनिंग थी जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी ट्रेनिंग ना पुरानी दिल्ली के लोगों ने करी है। मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, क्योंकि मैं वो चीजें सुन के बड़ी हुई हूँ ना, वो कैसे बोलते थे या मेरी अम्मा कैसे बोलती थी भाई। अब पुरानी दिल्ली से आप भी वाकिफ हैं भाई, वहां के तो चप्पे चप्पे पे जो एक अगर आप डिक्शन और एक्सेंट और वो सब सुनने खड़े हो जाए ना, असल में वो ट्रेनिंग ना आपकी इनडायरेक्टली हो रही है। वो आपको कोई, अब आजकल मैं हंसती हूँ जब कोई मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन देखी ये कैसे बोल रहे हैं। अरे भैया हम तो पल के बड़े हुए हैं वहां पर ऐसे। वो सब्जी वाली की आवाज से मलाई वाली है ऐसे करके जो आंख खुलती थी हमारी सुबह। तो ये ट्रेनिंग है बेसिकली, ये इनफॉर्मल ट्रेनिंग है जो हुई। तो वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर मेरे दोस्त ने प्रभात, उन्होंने मुझसे कहा कि फौजिया तुम्हें दास्तानगोई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने दानिश हुसैन से मुलाकात करी, फिर दानिश हुसैन के साथ मैंने काम शुरू किया। तो फिर काफी बार ऐसा लगता है कि जिंदगी आपको वहां लेकर आई है जहां पर आप ढूंढ रहे थे जो चीज, कि यार ये चीज है वो जो जिंदगी में करनी है। ये कैसे रियलाइज हुआ? मजा आने लगा, नशा हो गया सीरियसली। और मैं वही सुबह से शाम तक मैं नौकरी करती थी, फिर शाम को मैं जाती थी इतनी दूर दानिश सर के साथ काम करने के लिए। तो वो जुनून ही है जो करा सकता है। आप सुबह 5 बजे आपका दिन शुरू हुआ है, रात के 11:30 बजे खत्म हो रहा है, फिर अगेन आपको अगले दिन 5 बजे उठना है। फिर मैंने वो याद करना और वो पढ़ना और वो सीखना, मुझे लगा कि भाई ये वो चीज है। मतलब मेरा हर चीज छूट गई थी, मेरा टीवी देखना छूट गया था, मेरी हर चीज छूट गई थी और मुझे लगा था कि ये है वो चीज जो मुझे करनी है। फिर 2014 में तो मैं कहती हूँ मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैंने नौकरी छोड़ दी अपनी। हाँ, मैं वो पूछने वाली थी कि आप टीचिंग प्रोफेशन में थी। मैं SCRT में प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी। और आपने जॉब छोड़ दी? मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब कौन छोड़ता है फौजिया? छोड़ दी। मैं वो कहती हूँ मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि परमिशन नहीं मिलती थी शोज करने की ना, मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी उतनी। अब शोज करने हैं जिंदगी में, ये करना है, और ले लिया दीवानगी में वो एक। बट आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे तब, और मैं फैमिली का क्या रिएक्शन था कि नौकरी छोड़ दी? 2014 में मैंने जब नौकरी छोड़ी, जब मेरे भाई बिल्कुल सेटल हो चुके थे, जब मुझे यकीन हो गया कि अब नहीं है, मतलब अब मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा देखूंगी क्या करना है, तभी छोड़ी मैंने नौकरी। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम हमें ये करें, नहीं, पढ़ाई जरूर करनी है भाई। मैंने अपनी मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जामिया से। पढ़ाई करनी जरूरी है और पैसे कमाने भी जरूरी हैं नौकरी से, ठीक है। लेकिन अपने, हाँ, अगर आपका पैशन आपको पैसे देते तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, लेकिन भाई पढ़ाई जरूरी है। मैं कभी भी, एजुकेशन तो जरूरी है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप अपनी डिग्री छोड़िए और निकल पड़िए अपने पैशन पर और आलम दीवानगी में। बिल्कुल नहीं, भूखे मर जाएंगे आप। हाँ, एक जो बैकिंग है, बैकिंग होनी चाहिए। हाँ, मैंने भी तब फैसला लिया, सबको मतलब सेटल करके ही छोड़ी नौकरी तब। हाँ, जब मैं और मेरी अम्मा ने कहा ठीक है अब तुम करो। मेरे भाई सपोर्ट था? हाँ, बहुत सपोर्ट था मेरे भाई का और मेरी माँ का, और आज भी मेरे भाई का ही सपोर्ट है। बट आप मतलब पहली फीमेल दास्तान को जिसको कहते हैं, यकीन मानिए मुझे नहीं पता था। नहीं पता था मुझे, जब मैंने दास्तान ऐसा करने जा रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लोगों ने मुझे बताया। तो आप क्या सोच रहे थे कि ये करियर मेरा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, बस मुझे करना है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने ये मेरा करियर बन जाएगा। मेरा कोई
आपने कहा था ना, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा पर्सनल गोल नहीं था, मुझे बस ये करना था, मुझे अच्छा लग रहा था जिंदगी में, और मुझे मजा आ रहा था, और मुझे ये परफॉर्म करना था। और पता नहीं, मुझे लगता है कि ये कभी कभी ना आपको खुदा ऐसी राह पे डाल देता है जो आप उनको लगता है कि आपके लिए सही है। और ऐसी बात नहीं है, मैं ना बड़ा मुझे अच्छा लगता था, मैंने प्ले देखा था रुस्तम सोहराब ऐवान गालिब में, तो जिंदगी ने ना कभी वो मौका नहीं दिया यास्मीन जी। मुझे लगता था कितने अच्छे स्टेज पे जाते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ सीखते होंगे, मतलब उतने पैसे कभी नहीं रहे कि हम जाके कभी किसी से कहें कि जी सर हमें वर्कशॉप करनी है या सीखना है। तो वो जिंदगी ने कहीं मौका दिया नहीं, और जिंदगी ने मौका दिया तो ये मुझे लगा कि भाई इसको तो कैप्चर करना है, इसको नहीं छोड़ना। तो बस वो जो एक जुनून था ना बचपन की, जो एक कहते हैं ना कभी आपकी नासूदगी जिसे कहते हैं, कि वो जो ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हुई है और वो आपको मौका दे रही है जिंदगी पूरा करने का। तो आप यकीन मानिए मैंने लोगों के घरों में जाके फ्री परफॉर्म किया है। अच्छा। हाँ भाई, दास्तान गोई में मुझे आज तक मार्केटिंग नहीं आती है, यकीन मानिए मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे अपने आप को मार्केट कैसे करना है, मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है मेरा। हाँ, तो जब अभी दास्तान गोई जब मैं अपने दम पे मैंने काम करना शुरू किया, दानिश हुसैन जब बॉम्बे चले गए, तो भाई कैसे करें। अब हमें तो पता नहीं है कि ये हमारे खानदान में भाई कोई है ही नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, कि अम्मा बताएं या भाई बताएं, वो बस बोलते हाँ ठीक करो। हाँ। अब कैसे करो वो तो आप ही को ढूंढना है ना। हाँ। हमें तो नहीं, इवन मुझे ये नहीं पता था कि मंडी हाउस में जाके भाई ये वो जो आपका थिएटर बुक होता है वो कैसे होता है। तो फिर हमने क्या किया, अब जैसे किसी ने कहा कि फौज हमारे घर में एक पार्टी है, आप परफॉर्म करेंगी। ये बात है 2015, जब 14 में मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने कहा हाँ हम करेंगे। लोग एक ड्राइंग रूम में मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर मेरी जो जर्नी हुई है बेसिकली, वो मेरा सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स देखिए नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं उस तरह से तो अलग ही कोई अलग ही खेल है ना। हाँ। वो नहीं है मेरे पास। हाँ। आज भी नहीं है, सोचिए। लेकिन लोग मुझे, मैं जबान से मैं बनी हूँ, लोग अरे फौजिया को बुलाओ, अरे फौजिया को बुलाओ, फौजिया को देखो, फौजिया को बुलाओ। फिर आर्टिकल्स आने शुरू हो गए अपने आप। मैंने कोई पीआर एजेंसी हायर नहीं करी आज तक, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं, वो लोग मुझे कॉल करते थे, हम आपके ऊपर आर्टिकल करना चाहते हैं, हम आपके बारे में लिखना चाहते हैं। तो मुझे लगता अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैं कहा जी मैं मिल लूंगी। अच्छा इसके लिए क्या करना होगा जी, आपको मिलना होगा। अच्छा जी मिल लेते हैं। आप और मैं भी ऐसे ही मिले थे। हम और आप ऐसे मिले थे। एक मैगजीन के कवर पे शूट कर रहे थे। हाँ, तब मुझे एचटी से कॉल आया। मैंने कहा मैं कवर पे क्यों, मतलब मैंने भी ये सोचा था, मैं कवर पे क्यों, है ना, मतलब मैं क्यों भाई, मैंने तो ऐसा तो ये जिंदगी का ये सफर ये अपने आप ऑर्गेनिकली हुआ है जो हुआ है। मैंने इसमें कुछ भी पुश नहीं किया। और मैं आज भी ना प्लान नहीं से, मुझसे लोग कहते हैं अरे फौजा ये करो ना, ये बिकेगा। तो मुझे कभी ये चीज समझ में नहीं आई, बिकेगा मतलब। आज भी ना मैं दिल से काम करती हूँ, मतलब अगर मेरा दिल चाहेगा कि भाई हाँ इस पे मैं चीज करूँ, कोई चीज बिकेगी, मुझे लगता है वो तासीर चली जाएगी मेरी जबान से। मुझे सच में ऐसा लगता है। अगर जिस दिन मैंने इसको इस तरह से लेना शुरू कर दी ना, वैसे काफी बार लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा सुनाया फौजिया, तो मैं हमेशा कहती हूँ उनकी दी हुई तासीर है, जिस दिन चाहेंगे खत्म कर देंगे। तो ये जो तासीर है ना, ये खत्म हो जाएगी जिस दिन मैंने इसको, भाई ये भी ऑर्गेनिकली हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं इसको ऐसा कोई प्लान नहीं कर सकती कि मैं ये चीज करूंगी तो ये बहुत बिकेगी, ये बहुत चलेगी। मैंने अपनी कोई भी दास्तान ये सोच के नहीं करी कि ये दास्तान मुझे करनी चाहिए और ये बहुत चलेगी। नहीं, आप सोचिए, लोग कहते हैं अरे बॉलीवुड के जमाने में मधुबाला और मीना कुमारी पे दास्तान कौन करता है। मधुबाला का ताल्लुक पुरानी दिल्ली से था, और मीना कुमारी की दास्तान मेरे दिल के इतनी करीब है। मुझे लगा भाई ये कहानी तो सामने आनी चाहिए दुनिया के। तो लेकिन लोग सुनते हैं ना आज। हाँ, लोग सुनते हैं। आपने रियलाइज नहीं किया था कि आप पहली फीमेल दास्तान गो हो, बट इसके जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस लगे कुछ के? कहाँ नहीं है वो चैलेंजेस, आप बताइए, आपकी फील्ड में नहीं है ना? बिल्कुल। तो इसमें तो नेचुरल है होना। काफी बार लोगों ने कहा कि फीमेल, मैं स्टेज से उतरी, अभी आप दास्तान गोई कैसे कर रही? दास्तान गोई तो औरतें करती नहीं थी। तो मैं डर गई सीरियसली, और मैंने कहा अच्छा, मैंने दानी सर को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग, क्या उनसे पूछो कहाँ लिखा है। मैंने कहा, क्योंकि मैं तो उसमें डरी हुई सहमी बच्ची, 2007-8 की बात है ये। मैंने कहा अभी तो मैं फिर भी जवाब दे देती हूँ, अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया, वो थोड़ा सा जोर आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, कहीं लिखा तो नहीं है, सही बात है। तो इस तरह से सफर शुरू हुआ। उस टाइम रिएक्ट करने को नहीं था, पहले आके पूछना पड़ा। हाँ, दानी सर से मैंने पूछा, मैंने कहा सर वो ऐसे बोल रहे हैं, तो
उनको बोलो कहाँ लिखा है ये फीमेल दास्तान, कहीं लिखा है कि फीमेल दास्तान को नहीं हो सकती, नहीं कर सकती। उसके चैलेंजेस ये हैं कि जब आप दास्तान को फीमेल को देखिए यास्मीन जी, तो उसमें वो बहुत ही जो जेस्चर है उनके, तो जब हम एज ए फीमेल हम उसको, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, हम बद्धे ना लगे। ये मुझे लगता है कि सबसे एक चैलेंज है। और काफी बार हम चीखने ना लगे। जैसे मैं काफी बार मैं देखती हूँ फीमेल दास्तानगो को या जब परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो हमें उनसे कम्पीट नहीं करना है, हमें अपनी जो एक फेमिनिज्म है ना हमारा, वो हमें अपनी दास्तान में लेकर आना है, उसमें वो खूबसूरती लानी है। ठीक है, ये एक चैलेंज है। अब आपको लग रहा है कि अरे भाई ये आदमी तो देखो यूं करके दास्तान कर रहे हैं, तो हमें भी वैसे ना अपना स्टाइल बनाना है। और आपको मुझे हमेशा, जब भी मैं वर्कशॉप करती हूँ दास्तान गोई की, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी दास्तान में आपकी शख्सियत नहीं झलकी, अच्छा, तो वो मजेदारी नहीं होगी। अच्छा, जब आप कोई कैरेक्टर भी कर रहे हो, कहानी सुना रहे हो, लेकिन आपकी शख्सियत का वो रंग आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये मेरी राय है, जरूरी नहीं है कोई हर कोई इससे एग्री करे। आप तो ट्रेन भी कर रहे हो? मैं ट्रेन भी कर रही हूँ, मैंने काफी बच्चों को भी ट्रेन किया है, लेकिन मैं ऐसे अपने घर में कोई दुकान नहीं चला रही। मतलब हाँ, मुझे वर्कशॉप्स के लिए बुलाते हैं। मैंने जामिया में पेपर पढ़ाया दास्तान गोई का, एक पूरे सेमेस्टर। अशोका यूनिवर्सिटी में मैंने पेपर पढ़ाया। तो अब मैं उसको एजुकेशन की तरफ मैं चाहती हूँ कि अब भाई जैसे थिएटर इन एजुकेशन है ना एक पेपर, मैं चाहती हूँ कि दास्तान गोई कभी चाहे एक सेमेस्टर आप पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। क्यों? तभी तो रीच बढ़ेगी। बच्चे मजे लेते हैं। पता है, हमको लगता है इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस है, ये नहीं सीखेगी। यकीन मानिए बच्चे मेहनत करते हैं अपने स्क्रिप्ट तक। मैंने कहा खुद लिखोगे, चाहे ठीक है वो ना हो परफेक्ट स्क्रिप्ट, लेकिन लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको जैसे इस फॉर्म को ना अब हर रूप धारना होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसको जैसे थिएटर इन एजुकेशन है, भाई थिएटर बहुत ही वास्ट है ना, स्टेज पे भी हो रहा है, स्ट्रीट प्ले भी हो रहा है, और जी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आपका एनुअल डे डिजाइन हो रहा है ना। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी लोग बोलते हैं हमारा एनुअल डे है, हम चाहते हैं कि उसमें दास्तान हो, आप आएंगे हमारे स्कूल में काम करेंगी? बिल्कुल करेंगे। तो बहुत ही मतलब बढ़िया बात है कि इतने कम वक्त में इसकी जो पॉपुलैरिटी है, मतलब ये तो इन इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड कि इसकी इतना कम समय में ये इतनी पॉपुलर हो गई कि आज जैसे हम बात करते हैं कि कव्वाली को भी बुलाया जा रहा है और दास्तान गोई को भी उसी स्टेज पे, उसी प्लेटफॉर्म पे जगह मिल रही है। हाँ। आपको लगता है दिल्ली का जो कल्चर और हिस्ट्री है, या जो दिल्ली का जो माहौल है, दिस वाज अ नेचुरल प्लेस कि जहाँ पे इसका रिवाइवल हो सकता है? क्योंकि हम उर्दू यहाँ की जबान है, गंगा जमुना की तहजीब जो है, जो कि दास्तान गोई का एक पार्ट है, वो यहाँ की कल्चर में मतलब घुटी हुई है। तो इसका रिवाइव होना, यहाँ शुरू होना एक नेचुरल फिट था कि यहाँ पे ही ये हो सकती थी। ये भी उनकी, मैं समझती हूँ ऊपर वाले की पूरी ये प्लानिंग थी कि ये दिल्ली से हो। लखनऊ से भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है कि लखनऊ से नहीं हो सकता था, लेकिन दिल्ली एक शहर, दिल्ली में ना अभी भी आप देखिए अगर, तो खासतौर से मैं पुरानी दिल्ली की बात करूं, या आजकल आप भी देख रही होंगी बहुत आजकल सोशल मीडिया में ना, पुरानी दिल्ली को रमजान में आएगा तो भाई बमबारी हो जाएगी फोटोग्राफ्स की और वीडियोस की और इसकी। तो एक जो अभी कल्चर को लेके जो लोगों का एक अवेकनिंग आई है, जो मुझे लगता है लोग जानना चाह रहे हैं, बात करना, ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये सोशल मीडिया की एक पॉजिटिव बात है। जो मतलब जो कमियां भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई फील एग्जैक्टली यार ये इसकी एक पॉजिटिव बात है कि आज लखनऊ, भाई टुंडे कबाब सबने सुने, लेकिन आज रील्स जो आती हैं टुंडे कबाब की, या तो मैं उसने बहुत सींचा है दास्तान गोई को उस माहौल ने। और दिल्ली में लोगों को सुनने की आदत है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में जो कल्चर है आज भी आप देखिए, चाहे वो भाई एनएसडी है दिल्ली में, तो दिल्ली में एक रंग है जहाँ पे लोग आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। दिल्ली में ऐसी जगहें हैं जहाँ जो आर्ट के लिए मखसूस हैं, जहाँ पर आप अगर आप जाएंगे शाम में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि अरे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, जो कि और शहरों में अगर आप देखें तो नहीं है इस तरह की चीजें। मतलब बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ये डिवोटेड है ये दिल्ली इस चीज को लेकर, आर्ट को लेकर। कॉन्सर्ट्स मिल जाएंगे आपको जगह, आपको चलो आप आज फ्री हैं, चलो देखते हैं टिकट खरीद, कुछ तो मिल जाएगा। ये कुछ तो मिल जाएगा, ये हर शहर में नहीं है।
ये नहीं है, क्योंकि और जब मैं जाती हूँ, खासतौर से जब मैं अगले शहरों में जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ और शाम को आप लोगों का शगल क्या होता है, तो वहाँ वो क्लब्स हैं या छोटी छोटी चीजें वो हैं, लेकिन इस तरह का शगल जो दिल्ली में है, जो ये हमारे लिए बड़ी नेमत है, वो नहीं है। हम खुशकिस्मत है वैसे, ये हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ, और बल्कि और सबके टेस्ट का जब सीजन आता है उसमें तो भाई लगता है कि अरे कहाँ जाए, होता है ना काफी बजे, अब अपनी भी परफॉर्मेंस है और दूसरी की भी देखनी है है ना, तो लगता है अरे अब आज तो जा नहीं सकते, अपनी परफॉर्मेंस है, लेकिन बड़ा दिल चाहता है कि अरे ये हो रहा है, ये बड़ा देखने का मन था। तो ये लोग, और वहां पे लोग तरसते हैं, वहां पे लोग, हम जाते हैं तो वहां कहते हैं अरे 1-2 दिन और रुक जाइए ना। तो ये जो चीज है, इसने बड़ा सींचा है दास्तानगोई को, और दिल्ली के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है दास्तानगोई को, मैं ये भी कहूंगी, बहुत मोहब्बत दी है, सुना है, क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन प्यार भी दिया है। आप एक और भी चीज कर रहे हो कि दिल्ली की जो फॉरगॉटन डायलेक्ट्स हैं, बेगमों की जुबान, नाइयों की बोली, इसको आप रिवाइव, कारखानों की जुबान, इसको रिवाइव करने का आइडिया कहाँ से आया? खुद आया, और अम्मा और बेसिकली गुस्से से आया। अच्छा। हाँ, गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जब मैं जामिया में थी ना, तो या जब भी आप लोगों को लगता है, अच्छा आज तो फिर भी बहुत इज्जत देते हैं लोग पुरानी दिल्ली को, इस जमाने की बात करूं, में कोई पुरानी दिल्ली को इज्जत नहीं, अच्छा जा रही हूँ, कर रही हूँ, आ रही हूँ, भाई ये क्या है, जा रही हूँ, कर रही हूँ, आ रही हूँ, ये नहीं। तो तब मुझे ये आया कि भाई ये एक डायलेक्ट है जो पूरी पुरानी दिल्ली नहीं बोलती है, एक मखसूस एक ग्रुप है जो ये बोलता है, और ये बोलियां हैं, ठीक है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, काफी बार ना आप चीजें जानते हैं, ठीक है, फिर जब आप उसको किताबों में पढ़ते हैं तो आप, मुझे लगा कि भाई ये लोगों तक पहुंचाना है। जैसे 9 है, अब जब उस जमाने की बात है ना, जब ये शादी.com नहीं था, जीवन साई तो शादियां कैसे होती थी, वो 9 मैडम होती थी, उनके पास सबके बायोडाटा होते थे, और बायोडाटा कोई पेपर में नहीं होते थे, वो मुंह जबानी होते थे, अरे उसकी लड़की देख लो, अरे उसका बेटा देख लो, अरे वो तो ऐसा है, अजी पूरी ऐसी मार्केटिंग उनकी। आप पढ़िए जरा वो कंटेंट, और आपकी क्या मार्केटिंग है, स्किल्स थे उनके, और वो क्या बताती थी, अरे ये नहीं तो ये देख लो, अरे ये नहीं तो ये देख लो। तो ये शादियां ऐसे होती थी। अब ये डायलेक्ट है उसका, वो बात कर रही है उसमें। हमारी नानी, मुझे याद है, कोई आके बैठा, जैसे अरे सलाम सलाम बड़ी बीबी, अब सलाम बड़ी बीबी वो बात कर रही, अच्छा वहां की हो ना तुम। मैं नानी अम्मा से कहती थी आपको कैसे पता चल जाता है ये कहाँ की है? अच्छा। तो कहती थी बेटा बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कहाँ की है। ये जो हम रिफाइंड हो रहे हैं ना अब, जैसे अब आप देखिए, हम सब लोग, हमारे लहजे भी सेम हो रहे हैं, दिखते भी सेम है। जब रिफाइंड होना अच्छी बात है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है भाई। मगर बट इंडिविजुअलिटी जो है, वो कहीं खो रहे हैं। हाँ, मतलब अब हम भूल जाते हैं कि जैसे काफी बार मुझे लगता है अरे आपको तो देख के लगता ही नहीं आप पुरानी दिल्ली की हैं। हाँ, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लेती। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं, मतलब मैं कैसे दिखूं मैं पुरानी दिल्ली की हूँ, मतलब क्या करूं, मतलब क्या कर रही हूँ, जा रही हूँ करके ऐसे बात करूं। हाँ, और आज भी देखिए जो रील्स वायरल होती हैं इंस्टाग्राम पे, और मैंने ये देखा कि पुरानी दिल्ली वाले ही ना इसको बहुत फन एलिमेंट में ले रहे हैं। आज मैं पापे खा रही हूँ, तो मुझे लगा ये फन एलिमेंट अच्छा है, मतलब आप खुश होइए, लेकिन इसके पीछे पूरा एक मतलब पूरा एक ग्रुप है भाई, पूरा एक चीज है, कम्युनिटी है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको हंसी आ रही है आप हंसिए, लेकिन इसका पूरा एक लिटरेरी मानी है जो कि आपको समझने पड़ेंगे, और वो भी बनाना पड़ेगा। और पता है मुझे लगता है कि अशरफ सूफी दहलवी साहब की किताब है, मैं हमेशा उसे कोट करती हूँ, मैं दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, उन्होंने उसमें जो खाके लिखे हैं वो किसी बड़े शायरों के खाके नहीं है, मल्लन नाई के खाके हैं, अच्छा। मिर्जा चपाती का खाका है, घुम्मी कबाबी का खाका है ना। तो ये आम लोग हैं, ये उन्होंने एक बड़े अच्छी लाइन इस्तेमाल की, मुझे बड़ी पसंद है, दीवानी औरतें और पगले आदमी। तो ये जो दीवानी औरतें और पगले आदमी है ना, जिनको हम भूल रहे हैं, मुझे उनको जिंदा रखना है इस काम के जरिए, बाकी मेरा कोई एजेंडा नहीं है। और मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी आज आपने जब शुरू में कहा कि फौजी मेरा कोई पर्सनल वो एम्बिशन नहीं है। हाँ, और वो बेहतर है, पता है, क्योंकि वो हमें जिस रास्ते पे ले जाता है ना, वो हमें पता ही नहीं होता कि वो किस रास्ते पे लेके जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है ना, ये हमारे दिल की चीज है। अब फिर लोगों ने उसे पसंद करना, और ये मैंने ऐसी महफिलों में बात करनी शुरू करी, उसको करना शुरू किया, फिर फेस्टिवल्स में लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, लोगों को पसंद आने लगा। अरे फौजी तो हमने कभी इसको इस चीज से देखा ही नहीं था, हमने तो सुना ही नहीं था। तो आप पूरा शो करती है इसके ऊपर? इट्स लाइक अ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन।
अब भाई कारखानदारी जबान है, जब तक मैं कहूंगी देखिए कारखानदारी जबान ऐसी होती थी, गोपीचंद नारंग ने साहब ने उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है। लेकिन जब तक आप उसे बोल के नहीं दिखाएंगे, लोग कैसे पता कि वो कारखानदारी जबान है या क्या फर्क है। जैसे मैं जो ऐसे बोल रही हूँ कारखानदारी जबान, जब मैं बोल रही हूँ तो क्या डिफरेंस है। और वो मेल बोलते थे कारखानदारी जबान, वो मेल। मैंने बेगमाती जबान, बेगमात जो थी उनकी जबान पे काम करना शुरू करा। फिर वहां धोबियों की जो जबान थी, अब धोबियां लड़ रही हैं, है ना, धोबन है जो लड़ रही हैं वो आपस में, अब वो कैसे लड़ रही हैं। तो मुहावरे, जैसे मेरी नानी जिस तरह के मुहावरे बोला करती थी आम बातचीत में, हम नहीं इस्तेमाल करते थे। वो और एक चीज है जो हम खो चुके हैं, है ना। और वो मुहावरे जो थे, मतलब वो बोलती थी और अरे फील बदी, मतलब नेचुरल आता था उनकी जबान से। ऐसा नहीं कि वो सोच के बोलती थी। एक जबान की रिचनेस तो हम कहीं खो रहे हैं, वो भी एक आई थिंक क्योंकि हम रिफाइंड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी हम जबान की रिचनेस हम खोते हैं, घी मतलब डालडा, घी मतलब डालडा। एक पुरानी वो है कि जब पहले अगर घी बोलो तो सब लोग दुकान में जाके बोलते थे कि डालडा दे दो, डालडा दे दो। एग्जैक्टली, घी मतलब डालडा, घी मतलब डालडा। एग्जैक्टली। और हमारा बचपन की बात है ये, घी मतलब घी दे दीजिए, डालडा। मतलब बनिएगा, इंस्टेंट रिएक्शन आता था। मुझे याद है बचपन में मम्मी कहती थी जाओ सौदा लेकर आओ, तो हम कहते थे घी दे दीजिए आधा किलो, डालडा। तो ये घी आता था एकदम रिएक्शन। तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ। जो दास्तान गोई में जो हम पहले बात करते थे, नई कहानियां, जैसे कि नई कहानी नहीं, कहानियां तो पुरानी है, जैसे महाभारत की हो गई या बाबा साहब की हो गई, इसमें फॉर्म रेलेवेंट रहने में इसकी मदद है, क्योंकि आप नई कहानियां सुना रहे हैं, मतलब नई पुरानी कहानियों के बजाय, जैसे आपने कहा कि इन कहानियों को भी अब इसी तरीके से सुना रहे हैं, एलिमेंट सारे फिर भी सेम रखे हैं, सेम रखे। हाँ, नहीं, नई कहानियां भी सुनाई जा सकती है। जैसे जब मैंने निर्भया पे किया, हाँ, आपने निर्भया डिजिटल दास्तान गोई करी, तो उसमें वो नई कहानी थी, नई टॉपिक था, लेकिन फॉर्म वही रखा। लेकिन अब डिजिटल था तो वो वीडियो अगर आप देखेंगी, वो पार्किंग में शूट हुआ हुआ वीडियो है। अच्छा, क्विंट के वो शूट इस तरह से किया है कि आपको रियलाइज नहीं होगा कि वो पार्किंग में शूट किया है। कोई ग्रीन क्रोमा कुछ नहीं था उस जमाने में हमारे पास, जब हमने निर्भया पे किया है। तो वो नई कहानी को आप इस फॉर्म में सुना सकते हैं बिल्कुल आराम से, लेकिन उसके लिए स्किल की जरूरत है, थोड़ी सी आपकी राइटिंग की जरूरत। बिना ट्रेनिंग के अब ये स्किल क्या एक्वायर्ड स्किल है? नहीं, देखिए मैंने दानिश हुसैन से काफी सीखा। हाँ, वो तो थिएटर के हैं, वो काफी सीखा मैंने उनसे, ऐसी बात नहीं है। आज भी मैं जब कहीं मैं कहती हूँ मैं फंसती हूँ तो मैं फौरन उनको कहती हूँ वीडियो कॉल पर आ जाइए जरा। हाँ, और मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट भेजती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ। I'm very grateful to him. मैंने सुना है कि बाकी कंट्रीज में भी दास्तान गोई, मतलब यहाँ तो 20 साल से भी कम हुए हैं, बट पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। पाकिस्तान में शुरू हो गया। कल ही मेरी फवाद से बात हो रही थी। हाँ, तो मैं फवाद से बात करूँगा, बताओ नया क्या कर रहे हो। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और वो मुझसे पूछते हैं नया क्या कर रही हो, दानिश से पूछते हैं नया क्या कर रहे हो। तो ये जुड़ाव है। और आप लोगों की जो कोलैबोरेशंस हैं, जैसे अब आपने कहा कि किताबों के साथ एक जुड़ गया कि कोई लोगों को आइडियाज आ रहे हैं, और कोलैबोरेशंस कुछ हो रही है म्यूजिक और थिएटर के साथ आगे क्या? मैंने राधा कृष्ण किया था ध्रुपद के साथ। अच्छा, क्लासिकल राधा कृष्ण की मैं कहानी सुना रही थी, और ध्रुपद की में जो उनकी काफी, और कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा। IGNC में किया था शो। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो नॉर्मली एक प्रोग्राम को करने के लिए या एक नया शो करने के लिए आप कितना प्रैक्टिस करोगे? भाई आजकल ना, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझसे, और मैं आजकल मुझे ऐसे लोगों के कॉल्स आते हैं, फौजिया ये टॉपिक है, हमें दास्तान गोई करानी है, 15 दिन में शो है। 15 दिन में शो है? तो मैं उनसे कहती हूँ भाई दास्तान गोई नहीं हो सकती, मैं स्टोरी टेलिंग कर दूंगी, क्योंकि सामने भी कागज रखना पड़ेगा ना, है ना। दास्तान गोई में कागज, भाई कागज कैसे रखेंगे दास्तान गोई में? अब करना नहीं फौजिया करना तो है, और ये कराना है, तो भाई स्क्रिप्ट लिखने में ही टाइम चला जाता है, रिसर्च करने में टाइम चला जाता है। ऐसे थोड़ी कि हम कुछ भी परोस देंगे, पूरी रिसर्च होती है, फिर उसे लिखा जाता है, फिर उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फिर हम उसे स्क्रिप्ट को बोल के देखते हैं कि जबान पे जा रही है कि नहीं, फिर वापस वो राइटर के पास जाता है, फिर मीटिंग्स होती हैं। तो कम से कम 3 महीने कम से कम एक भाई लगना चाहिए दास्तान में।
हाँ। और फिर आपको उसको आप पेपर नहीं रख सकते अपने सामने दास्तान गोई में, हाँ नहीं रख सकते। तो फिर उसको याद करने में कितना वक्त लगता है? 3 महीने मैंने इंक्लूड करके बोला है। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, वो रियाज होगा, वो जबान जितना आप रियाज करेंगे उतना निखरेगा और वो याद हो जाएगा। याद करने की फिर कैपेसिटी भी बढ़ी जाती है। इरफान से आज आपकी एक अपनी जर्नी हो गई है, आपने कभी सोचा नहीं था, बट आप इंडिया की पहली फीमेल दास्तान को बनी है। कैसे लगता है पीछे देखकर? हैरानी होती है सिर्फ। द जर्नी हैज बीन वर्थ इट। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों की, जिन्होंने प्यार किया उनकी भी, और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनकी भी, क्योंकि उन्होंने मुझे टफ बनाया, उन्होंने मुझे सिखाया। शायद अगर वो लोग वो नहीं करते ना तो मेरे अंदर और जुनून पैदा नहीं होता काम करने का। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ हमेशा, थैंक यू कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, वरना शायद मेरी आग कहीं कम पड़ जाती। ये जरूरी है, आपकी जो लोग आपको क्रिटिसाइज करें वो भी जरूरी है, और जो लोग आपसे प्यार करें वो भी जरूरी है। दोनों का शुक्रिया, और उनका शुक्रिया बहुत कि अभी तक हाथ थाम रखा है उन्होंने मेरा, और मेरी दुआ है कि वो हमेशा थामे रहें। आई थिंक ये जो फीमेल जेंडर होता है, औरतों की एक अलग ही जर्नी, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, एक अलग जुझारूपन, जो मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया था ना वर्ड, हाँ? जुझारूपन, हाँ। जो हमारे अंदर एक जुझारूपन होता है ना, जुझारू से क्या मतलब? जुझारू मतलब हम लोग हार नहीं मानते। अच्छा ये नहीं हो रहा ये करेंगे, ये नहीं हो रहा ये करेंगे, ये नहीं हो रहा ये करेंगे, है नहीं। मेरी अम्मा भी ऐसी थी, घर में कोई चीज उनके डिक्शनरी में ना वर्ड था ही नहीं। हाँ, इससे मैं काफी सहमत हूँ। हाँ, मतलब हम ट्राई करते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा। हमारी माँ कहती क्यों नहीं हो पाएगा? मेरी अम्मा हमेशा मुझे डांटती थी, जब कहती थी काम को मत सवार किया करो अपने ऊपर, काम पे सवार हुआ करो। तो मैं कहती थी क्या बात होती काम पे सवार हुआ करो? तो हमेशा मुझे इस तरह डांटती थी, काम को नहीं सवार करते अपने ऊपर, काम पर सवार होते हैं। तो ये ना, और ये शायद हमें माओ से मिलता है, या हम, और इनडायरेक्टली हम उन्हें देख रहे होते हैं वो कैसे कर रही हैं जिंदगी में। कोई बैठ के सिखाता, कोई बैठ के थोड़ी सिखाता है कि बेटा इस सिचुएशन में तुम्हें ये करना है। तो हम सीख जाते हैं। जैसे हम, मेरी भतीजी हैं, जैसे मैं अली से ऐसे नहीं हो पाएगा ये चीज नहीं। अच्छा तो फूफो ये ट्राई कर लीजिए ना, फूफो ये कर लीजिए ना, अच्छा फूफो अच्छा यहाँ कर लीजिए ना। तो वो अभी सिर्फ 7 साल की हैं, लेकिन वो ये सीख गई हैं। तो ये हमारे इनबिल्ट है, ये कुछ है, हमारी चिप है कुछ हमारी औरतों की। हाँ, औरतों की स्पेशल चिप। हाँ, ये चिप है हमारा सॉफ्टवेयर है ये कोई। तो ये मैंने देखा है। और हम लोग 2 महाजों पे लड़ रहे होते हैं ना असल में। देखिए हम घर में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम, मैं ये नहीं कह रही कि मैं घर संभालती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ भी कहिए घर से ताल्लुक रहता ही है हमारा। हम घर को एकदम ऐसे नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास नौकर हो तब भी, नौकर ना हो तब भी। तो ये हमें ना कई महाजों, और हमारी ये भी मैंने स्किल देखा है औरतों में खास तौर से, मैं मर्दों को ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन ये है बात कि हम ना कई महाज, हम जिंदगी के एक साथ लड़ रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते अरे ये काम मैं अभी नहीं करूंगी, अभी तो मैं ये कर रही हूँ ना, हम 4-5 चीजें साथ कर रहे होते हैं, और कभी कभी बहुत परेशानी से गुजर रहे होते हैं सब महाजों पर, और हमें उतना ही 100% देना होता है अपना जिंदगी में, हर महाज का। और हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है। मैं हमेशा पूछती हूँ, जब भी मैं कभी बहुत टूटती हूँ या कभी बहुत उलझ जाती हूँ चीजों से, मैं जब बहुत ही ज्यादा मैं लो होती हूँ तो मैं पूछती हूँ अच्छा ऑप्शन क्या है? जवाब आता है कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है तो भाई चलो फिर खड़ी हो, काम पे सवार हो जाओ। हाँ, काम पे सवार हो जाओ। अम्मा की बात याद आती है, इसको मत सवार किया कर अपने ऊपर, काम पे सवार हुआ कर। हमेशा डांटती थी मुझे, उनकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो नहीं है। 2021 में उनका इंतकाल हुआ कोविड की 2nd वेव में। तो और मैंने पुरानी दिल्ली की औरतों में भी देखी ये चीज। पता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब मैं इसलिए पुरानी दिल्ली का एग्जांपल दे रही क्योंकि मैं उनको देख के बड़ी हुई हूँ, मगर उनकी जो सोशल स्किल्स हैं या उनकी जो सिचुएशन, आपने कभी सुना है यास्मीन जी कि हमारे पुराने जमाने में हम मेंटल हेल्थ की तो इतनी बातें करते नहीं थे। ये आज जो हम जिस सिनेरियो से जूझ रहे हैं, हर कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा है,
कभी हमने पुरानी औरतों को थेरेपिस्ट के पास जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो क्योंकि ये हम शायद ये हम हमारी जो जनरेशन है हम उस दौर से भी गुजर रहे हैं जब हम इमोशनली वीक हैं, या जब हमें ताकत लेने के लिए कुछ और चीजों का सहारा लेना पड़ता है। मगर मैं देखती हूँ, मैं कभी बड़ी नानी को याद करती हूँ अपनी, कभी अपनी दादी को याद करती हूँ, कभी अपनी अम्मा को याद करती हूँ, अपनी मेरी खालाएं हैं माशाल्लाह से, मैं उनको देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बड़ी जूझ कर उन्होंने जिंदगी गुजार ली और कभी इन्हें किसी और चीज की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत काम मैं कर रही हूँ अभी, मनस फाउंडेशन है उनके साथ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है वो चीज। क्योंकि काफी अच्छा ये औरतें विदाउट एनी थेरेपिस्ट सर्वाइव कर रही हैं, है ना। ये भी मैं इसलिए मैं इनको बहुत मानती हूँ। और लेकिन आज मैं फिर उन्हीं औरतों से, जब मैं पुरानी दिल्ली आती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको इससे कंसल्ट करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। अब जमाना भी तो जमाना बदल गया, और हमारे जो चैलेंजेस हैं, जैसे मेरी अम्मा कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, मुझे तुम्हारा बड़ा तरस आता है। हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी उस तरह से। ठीक है, हमारे पास सहूलियतें नहीं थी, हमने सिल पे चटनियां पीसी हैं, ठीक है, लेकिन आज तुम लोग जिस दौर से गुजर रहे हो वो ज्यादा मुश्किल है। और अब मुझे लगता है कि अलीज़े शायद जिस दौर से गुजरेंगी वो ज्यादा मुश्किल होगा। आपकी नीज, मेरी नीज, हाँ, तो ये है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो अंदर की आग है वो जलती रहे। आमीन। और आप भी सलामत रहें, मेरी दुआ है, क्योंकि आप जैसी, और मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, बहुत आपको एडमायर करती हूँ, आपके स्टाइल को बहुत एडमायर करती हूँ, खासतौर से आपका आउटफिट मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। मैंने इसलिए पूछा शुरू से कि ये आप ही के ब्रांड का है, तो मैं आपके स्टाइल को बहुत एडमायर करती हूँ। और आप सलामत रहें और ऐसे ही बहुत अच्छा और काम करें, क्योंकि आप जैसे लोगों की भी हमें बहुत जरूरत है। बस आप कहानियां सुनाते रहे और हम लोग सुनते रहे। I feel like stories are owned both by the storyteller and the listener. The storyteller creates the world of the story, but the listener lives the story and often comes back for more. He or she sees something of their lives in the stories, or something they desire in their lives. Here's to more stories of Delhi that we can all enjoy. With the Delhi Love, we speak to people from Delhi who have stories to share. Stories of those who are invested in the city. We hope to build communities and open conversations that make Delhi more accessible, welcoming and adventurous. Join us next time as we explore Delhi's hidden gems, people, places and stories on Delhi Love, Ishq, Mohabbat, Pyar. I'm Yasmin Kidwai. Until next time.